ہیلو، جی جناب. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. ہاں جی، کیسے ہیں بھائی؟ الحمد للہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ مسلمان ہیں آپ بھائی؟ آپ کون ہیں؟ الحمدللہ مسلم۔ اچھا اچھا، آپ مسلم ہیں تو آپ غیر مسلموں سے بھی سلام کرتے ہیں اسی طرح السلام علیکم؟ نہیں، اور سب مسلمان بھی اس میں بیٹھے ہیں، جو مسلمان ہوگا وہ جواب دے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں جواب دے تو گا۔ آپ کو جواب دیا یا نہیں دیا میں نے؟ ہاں، جواب تو آپ کا آ گیا تو پھر مجھے۔ پھر آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. یہ تو آپ کو اگر آپ کو صحیح پتہ نہیں تھا تو آپ کو سلام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہندو اچھا، سکھ ہندو اور سکھ کیا عیسائیوں کو بھی آپ. آپ مرزا قادیانی جو ہے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں بیچتے مرزا قادیانی پہ لعنت؟ کیوں نہیں؟ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جو وہ جو ختم جھوٹا ہے، نبوت جو کا لعنتی ہے۔ جی جی، جو ختم نبوت کا ایک دفعہ منکر ہے اس پر بھی لعنت، اور جو 12 دفعہ منکر ہے اس لعنتی اس پر بھی لعنت. 12 دفعہ سے کیا مراد ہے؟ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو. دس دس دفعہ کر لیں؟ ہاں 12 دفعہ کریں گے 12. نہیں نہیں، چونکہ 10 دفعہ کر لیں۔ چونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اس طرح کے بے شک، لعنتی. وہ تو افضل ہیں، وہ تو بالکل افضل ہے، آپ کو کس نے کہا ہاں وہ تو افضل نہیں وہ ہے؟ لعنتی ہے نا. اچھا بات تو سنیں، ابھی تو آپ لعنت نہ کریں، پہلے آپ بات تو سنیں نا۔ ابھی ابھی آپ نے کیا بولا ابھی؟ مجھے میوٹ نہ کرنا، میوٹ سن نہ اب کرنا، سن اب سمجھو سن آپ نے تو، اب آپ کے پہلے پاس سنیں. دلیل نہیں ہوگی، میں آپ کو دلائل دوں گا، ایسے نہ دلائل دے لعنت بھیجنا۔ دلائل دے دلائل رہا دوں گا ہوں. میں، ایک کیونکہ منٹ آپ نے تو بات کی اپنی عقلی اب فہم سے، میں جو یہ کہہ جو رہا بات ہوں دلیل سن لو. کی ہوگی وہی مانیں گے نا۔ بھائی ابھی ادھر تو مجلس تو نہ کرو نا، بات تو پوری سنو پہلے. میں نے کہا کہ جو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ بھی کافر، اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ بھی ملعون ہے. اور جو 12 دفعہ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ملعون ہے. ٹھیک ہے، چلو. چلیں جی، کریں دلائل کے ساتھ گفتگو کریں. آپ دارہ اخلاق کے اندر تمیز کے ساتھ گفتگو کریں. آپ دلائل دیں قرآن و حدیث سے، گالی نہیں دینی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. تو آپ اپنا مدعا سامنے رکھیں کہ 12 امام جو ہے وہ تمام انبیاء سے کیوں افضل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کیوں ہیں. چلیں جی آ جائیں، اسی پہ انہوں نے گفتگو اپنا کرتے ہیں. مائک بسم اپنا اللہ۔ unmute کر. میں نے مائک انمیوٹ کر دیا، اب مجھے میوٹ نہ کریں پلیز، اور دوسری بات یہ ہے بیچ میں کوئی بولے نا۔ کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن آپ کی مجلس بھی نہیں سنیں گے. آپ سے جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیں صرف. اچھا، آپ کی مجلس حدیث ہے؟ یہ ہماری پہلے آپ مجلس ہے، حدیث ہم سنا یہاں دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں، بات کر اپنی رہے ہیں. زبانی نا، آپ اپنی زبانی نا اپنی حدیث سنائیں، ہم آپ کی حدیث پہلے سنتے ہیں، آپ کی حدیث سچی ہے یا جھوٹھی ہے، آپ حدیثیں بیان کرو، بولو، بات کرو۔ آپ کو کون سی حدیث سننی ہے؟ آپ جو منہ سے اپنی حدیثیں سنائی جا رہے ہو، ایسی نہ کوئی بات آپ اپنی عقلی فہم سے سنا رہے ہو یا کوئی کون حدیث سنا رہے ہو؟ اچھا، ہماری باتیں جو آپ کو نہیں سننا پسند وہ آپ کو مجلس لگ۔ کوئی بات کرے نا، آپ کوئی بات کریں کہ یہ بات جو ہے یہ آپ نے غلط کی ہے، یہ بات اپنے منہ سے کی ہے، یہ بات نہیں ہے، تو اس میں بات ہوگی نا. یار ابھی آپ سے کہا ہے کہ آپ سوال جو آپ کریں، آپ اپنی گفتگو کریں. آپ کو کوئی میوڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ اپنا مدعا سامنے رکھیں. یہ اپنا عورتوں کی طرح ٹاؤنٹ اور یہ فضول قسم کی بحث، چلیں یہ اگر ٹائم ضائع نہ کریں. آپ اگر سوال نہیں کر رہے تو پھر ہم پوچھ لیتے ہیں آپ سے. آپ کے 12 امام. جی ہاں. جی آپ نے انمیوٹ کریں مائک. پیچھے نہ جائیں نا، پیچھے نہ جائیں، آگے آ جائیں. اسے زیادہ میں رپورٹ نہیں مارتا آگے آ کے بات کرو بھائی. بھاگ گیا. اوپر آ کے بات کرو. پیچھے جانے کا، اوپر آتے ہو بات کرنے کے لیے اور پھر پیچھے چلے جاتے ہو. 12 اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہو، منصوص من اللہ سمجھتے ہو، مفترض الطاعہ سمجھتے ہو، اور معصوم عن الخطا سمجھتے ہو. تو انبیاء کی صفات ان کو اپنے 12 اماموں کے اندر مانتے ہو، تو یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے. اگر ان کو تم اپنے اماموں کے اندر مانتے ہو، تمہارے اندر قادیانیوں کے اندر کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات جو صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، اگر تم غیر نبی میں مان کے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، تمہارے 12 امام بھی معصوم عن الخطا ہیں، وہ بھی ملہم من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ان پہ، تمہارے اماموں پر بھی آتی ہے. کیا فرق؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی مفترض الطاعہ ہیں.
चूँकि अल्लाह की तरफ से वही आती है और तुम्हारे 12 इमाम भी, फ़र्क क्या रहा फिर? ठीक है। और चौथा ये है कि अंबिया से अफजल भी हैं तुम्हारे इमाम, तो किस बुनियाद पर वो अफजल हैं? कोई एक वजह ऐसी बता दो, कोई एक काम उन्होंने ऐसा कोई अनोखा किया हो कि वो अफजल है, सिवाय छुपने के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय अपने मज़हब को छुपाने के, अपने मज़हब में रद्द-बदल करने के। कौन सा ऐसा काम किया है कि उनको अंबिया से अफजल समझ लिया जाए? कोई ऐसी चीज़ है तो बताओ भाई। एक बार फिर सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस मैं नीचे जा रहा हूँ सर बैठता हूँ, आपको। जगह कम है। मैं भी जगह खाली करता हूँ सर। एक बात करता हूँ कि मैं जो है ना, हम जो है ना शियों को बार बार रिक्वेस्ट डालते हैं, हमें उठाते नहीं है, इधर आते नहीं है, क्या वजह है? अब इस वजह का तो नहीं पता हमें। इधर टीके लगते हैं ना, हम उनको मैसेज करते हैं, मतलब कमेंट में कि वोटाओ वो डालते हैं, नहीं उठाते, इधर आते नहीं है ना। ये बस ये सबसे बड़ा मसला है। ना आते चलो हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो ना आते हैं और ना उठाते हैं। ये मसला है ना। हाँ, दोनों अभी काम। सुनते भी करना नहीं सकते, उनको पता होता है ना जी कि जी, डॉक्टर हाँ, साहब बेटा है। सुनते तो हैं, क्यों नहीं सुनते? सुनने वाले ढेरों नीचे सुन रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से, मगर हिम्मत नहीं कर सकते बेचारे, क्योंकि जो दीन उनके इमामों ने बयान किया और जो वो खुद करते हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी बाशऊर इंसान के सामने उसको पेश कर सकें। वो खुद शर्माते हैं। अभी आप उनके मुते का नाम ले लो, उनको शर्म आ जाती है, फ़ौरन छलांगें लगाना शुरू कर देते हैं। आपके सामने अगर कोई निकाह की बात करे, आपको उससे क्या मसला है? इसलिए कि वो शरीयत के अंदर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अभी इनको कह दो मुता की औलाद, आप देखें आगे से गालियां शुरू कर देंगे, ओहो आपने हमें गाली दे दी। अरे मुता की औलाद कहना कौन सी गाली है? हमें कोई कह दे आप निकाह की औलाद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसका उल्ट ये है कि ज़िना की औलाद। आपको तो ज़िना की औलाद कहने से शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कोई निकाह की औलाद कह रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनको मुता की औलाद कहने से क्यों परेशानी होती है? इसलिए कि ये समझते हैं, इनको पता है कि इनके मज़हब में जो मुता है ये हरामकारी है, ये ज़नाकारी है। लेकिन अपने मज़हब को मतलब लोगों के लिए वो क्या कहते हैं कि अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इन्होंने ये चीज़ रखी हुई है बीच में, लेकिन वो मज़हब का हिस्सा नहीं है। इन्होंने जिसको बनाया हुआ है, कोई भी मज़हब ज़िना की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इनका घड़ा हुआ मज़हब है और लोगों को बस एक लोगों का झमघटा है, उसमें शाम गरीबा, जश्न और मुते और झूठ, ये सारी चीज़ें शामिल करके अपना मज़हब बनाया हुआ है, एक गैंग बनाई हुई है, बस इमामों की गैंग। देखें, इसमें ये जो जितनी तब्दीलियां हैं, हम मतलब कि किसी भी असहाबी रसूल की ज़िंदगी को पढ़ें या अहले बैत के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, तो उन्होंने ये काम नहीं किए जो ये अगले लोग कर रहे हैं। तो आप उनको इनके साथ तो ना कंपेयर करें, ठीक है? किन को? उनकी जो आप इमाम कह रहे हैं, इमाम का एक अलग मर्तबा है। जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो क्या वो लायक हैं इमाम कहलवाने के? इस तरह नहीं, इमाम उस के काबिल ही नाम नहीं है ना, वो काबिल ही, तौहीन है। वो इस काबिल ही नहीं है देखें कि वो इमाम कहलाया जाए ना, लेकिन दे, इन्होंने उनको हाँ, अपना इमाम बनाया हुआ है ना। ये तो उनको इमाम देखें कहते हैं, हम इनकी नज़र से इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको अपना आप इमाम इनको कहते हैं जो झूठ बोलता है, ये उनको अपना देखें ना इमाम आप, कहते हैं जो दीन बदलता है, तो हम भी इनकी ज़ुबानी उनको इमाम ही कहकर मुखातिब कर रहे हैं। नहीं आप देखें ना, आप इनको बुरा भला कहें ना। जिसने जिसने ये खराबियां की हम तो उसको कहेंगे ना बुरा भला। जिसने खराबियां ही नहीं की हम उसको क्यों बुरा भला कहें? तो मैं 12 ये कह इमामों रहा ने हूँ। की है ना उस्मान भाई, 12 इमामों ने नहीं खराबियां की है ना, आपको नहीं पता? यार देखें, हमारा मेरी बात सुनिएगा, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जो असहाबे कराम है ना, जी या जी, अहले बैत हैं, जो भी उनके आपस में मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, हम तो आपस के उनका इख्तिलाफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी जी, देखिए ना, हमारे पता क्या मसला है। हमें मतलब आप भाई हैं, आपसे मुझे होगा कि भाई हमें मुझे इस बात से आपकी इख्तलाफ है। आप अपना वो राय देंगे कि मैं भाई आपकी बात उस्मान समझ गया भाई, जी, उस्मान, मैं आपकी बात या समझ गया। या देखें, जितने लोग हैं ना इख्तलाफ है, उसमें दिल में बुग़्ज़ या लड़ाई झगड़े नहीं थे। अच्छा मैं आपसे, लेकिन हाँ जी, जी जी, हैदरी साहब, आप वैसे तो इनकी बात समझ चुके हैं, जी छोटी जी, सी गुजारिश आपकी
हैदरी साहब ये कहना चाहते हैं ये भाई के उनके जी जी बड़े कलाम मैं इस्तेमाल कर दें कि उनके बड़ों ने ये लिखा है मैं इनकी इमाम बात वाला समझ गया हूँ, मैं इनकी बात समझ गया हूँ। आप जी ये कह रहे हैं कि वो जो उनके इख्तिलाफ हैं उनके दरमियान है, मैं वो भी आपकी बात समझ गया हूँ। अब बताएं 12वें इमाम साहब के साथ हमारे किसी बुजुर्ग का क्या इख्तिलाफ था? सहाबा इकराम का किसी का क्या इख्तिलाफ था नहीं, कोई 12वें भी इमाम साहब? कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, कोई खिलाफ नहीं है। हमें उनसे कोई इख्तिलाफ है भी नहीं है। मसला जी ये है कि इन्होंने जिस 12वें इमाम साहब का तसव्वुर पैदा किया इसी तरह ऊपर तक ले जाए सब इमामों का। अब ये कहते हैं कि 12वां इमाम साहब आएगा, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके हाथ पर बैयत करेंगे, उनसे बैयत लेगा। तो आप ऐसे इमाम को मानते हैं कि जिसके हाथ पे रसूलुल्लाह को बैयत कराई जाए? नहीं है, इस तरह का तो नहीं ना मानते, मैंने हम ऐसे जिंदगी इमाम में को नहीं पढ़ा मानते। है। अगली नहीं बात बिल्कुल सुने, नहीं। ये कहते हैं कि सबने 12वां बैत इमाम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे की। जी उस्मान भाई, ये कहते हैं 12वां इमाम जो हमारा आएगा वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसी तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, दीगर अज़वाज मुतहरात, उनको उनकी कब्रों से नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह निकाल कर लटकाएगा और कोड़े लगाएगा। आप ऐसे इमाम को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, तो हम लानत भेजते हैं ना, ये वो जो है ना, इमाम ही नहीं है, वो इमाम ही नहीं है। जिन नहीं जो तसव्वुर देखें, इन्होंने पेश किया हुआ है, ये इन्होंने गलत तस्वुर पेश किया है। हम इनकी बातों में आके हम उनकी बेअदबी क्यों करें? सही है ना? किनकी मैं ये किनकी कहना चाह बेदबी? रहा हूँ कि आप देखें, किस बंदे हजरत की बात इमाम कर रहे हैं जिसकी हम पहली बेदबी कर बात रहे हैं? है, हजरत नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेअदबी कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ इमाम की बात कर रहा हूँ कि लफ्ज़ इमाम एक बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। आप तो इनको इनका हिट करें इमाम ना है ना डायरेक्टली। उस्मान भाई, उस्मान भाई वो जो 12वां देखिए साहब ये सारे वो काम करेगा वो इनका इमाम है ना, तो हम इनके सामने इनके इमाम क्या क्या बुलाते हैं ना। इमाम तो काफिरों के नहीं भी इमाम होते हैं, नहीं इसमें क्या है? होंगे, बिल्कुल होंगे इमाम, ठीक है। हम्म। देखिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ जी। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अच्छा, हज़रत आप उस्मान समझते हैं कि ये जो 12 सुनो हैं जो इमाम है सुनो तो ये भी सही। इमाम है? हम देखिए ना, ये इमाम है। हम कौन इमाम है? इन ये पता क्या मामला क्या है? आपने वो खुलफाए राशिदीन के नाम लिए हैं, हजरत अबू नाम बकर, दिए, हजरत, जी जी, इमाम है, इमाम नहीं है क्या? ये इमाम हाँ। है कि तो नहीं इमाम? जो ठीक 12 है। इमामों की ये बात करते हैं वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान हैं उसमें? ये तो सरासर जो है ना, उनको नाउज़ुबिल्ला गालियाँ देते हैं और उनके बारे में हम बड़े नहीं मानते ना। गलत अल्फाजात बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। हमारे तो इतने कद ही नहीं है ना, हमारे वो दीन का हमारे अंदर जो ईमान है ना, वो इतना हमारा नहीं है कि हम उनके बारे में गलत अल्फाजात बोलें या उनको किन के बारे नाउज़ुबिल्ला में, किन की बात कर रहे हैं आप? मैं 12 सहाबा इमामों की? कराम की बात करता हूँ सहाबा की भाई। बात तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं मैं 12 सहाबा इमामों की बात कर रहा हूँ। देखें, 12 इमाम, देखें ना, 12 इमाम जो है ना, 12 इमाम, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या रिस्पेक्ट करें इज्जत उनकी? करनी अच्छा क्या चाहिए। बताएं, नहीं कैसे करें? नहीं, देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान किताब छोड़ के जा रहा हूँ, इसे थामे रखना ताकि तुम गुमराह नहीं होगे, और अहले बैत के बारे में, अहले बैत के हवाले से डरते रहना। किन अहले बैत की बात की है? अहले बैत से क्या मुराद है? अहले बैत से क्या मुराद है? अहले बैत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरा हैं, उनकी औलाद पाक हैं, हाँ जी। ठीक है। तो ये बात, और सहाबा देखें, क्या नाम है, जी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के बारे में आयत भी नाजिल हुई कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये तो अल्लाह ठीक है इनसे ना, आप राज़ी हो दो गया। चीज़ों को मिक्स कर रहे देखें, हैं। मैं नहीं आप मिक्स नहीं कर रहा मैं, देखें मिक्स सहाबा नहीं कर इकराम रहा। की बात तो हम भी अल्लाह नहीं कर इनसे रहे मेरे राज़ी भाई। और उस्मान ये साहब, अल्लाह से राज़ी। उस्मान साहब, लेकिन उस्मान साहब, जी मुद्दे पे आ जाएं। जी आप साबित ये हुआ इतनी सारी गुफ्तगू से कि आप जी 12 इमामों को मानते हैं, वो नहीं, आपके मैं तो इमाम इसी है। करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, मैं तो इमाम रिस्पेक्ट, हसन इमाम बाकी भी भी आप उनको इमाम मानते हैं? जी रिस्पेक्ट बिल्कुल करना अलग इमाम। बात है। देखिए, इमाम रिस्पेक्ट तो बिल्कुल हम, माना। मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, देखें और इसी तरह कोई भी देखें हम, जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट करते और हैं हम, क्यों नहीं करते? साहबी देखें, रसूल है। हाँ साहब, ये रसूल है ना। 12 इमाम, आप इमाम वाज़ेह मानते हैं उनको? क्लियरली हदीस है, वाज़ेह क्लियरली हदीस है। तो ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और अली की मिसाल इस तरह है जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की तो वो मिसाल चौथे है। खलीफा है हमारे, साहबी भाई रसूल है, चौथे चौथे खलीफा है, खलीफा है। तो क्या चौथे खलीफा की जो औलाद है उनकी आप उनको मानेंगे नहीं? क्या माने उनकी उनको? इज्जत नहीं करेंगे? इज्जत तो मैं आपकी भी कर रहा हूँ, इज्जत तो हर एक की करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों की ताज़ीम अदब नहीं करता, वो हम में से नहीं है। हर उनमें बड़े से की नहीं। ताज़ीम करनी है। इसमें इमामों का, इन 12 इमामों का क्या खासा है कि उनकी खुसूसी कोई बात है? वो तो सबकी ताज़ीम करनी है, अपने से जो भी बड़ा है उसकी ताज़ीम करो।
چھوٹا ہے اس نہیں، پہ کیا شفقت کرو. ان کی کوئی خصوصیات نہیں ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ امام ایز اے امام آپ بات کر رہے ہیں، 12 میں امام. آپ سے سر سوال کر رہا ہوں، ہمارا ان باتوں میں لڑائی نہیں، اختلاف ہے آپس میں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کیا ان آپ کا شیعہ دین ہیں میں؟ نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں بھائی، میں کیوں شیعہ ہوں؟ تو اگر آپ کا میں میرا شیعہ ہوتا تو آپ کا میں، میرا آپ کا میرا کیا اختلاف ہے؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ آپ کہہ 12 رہے اماموں تھے، کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں، اچھا، آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں، آپ 12ویں امام صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ کیسے امام ہے وہ؟ کس چیز کے امام ہے؟ کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ کیا ان سے آپ نے لیا؟ دیکھیں یہ تو احادیث میں آتا ہے کیا کہ آتا ہے؟ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ وہ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صحیح ہے، وہ 12ویں امام آئیں گے، صاحب ہیں وہ تو قرب قیامت نہیں، وہ تو آج سے 1200-1300 سال پہلے آ چکے ہیں اور اس ٹائم غیبت میں ہے. آپ بھی یہی ٹھیک مانتے ہے، ہیں؟ اس ٹائم کیا ہے؟ وہ غیبت میں ہے، غیبت میں چھپے نہیں، ہوئے ہیں، وقت کے ان کا انتظار میں ہے. نزول ہوگا، ان کا نزول ہوگا، ہاں تو پھر ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، پھر دو دیکھیں نا، پھر دو الگ چیزیں ہو گئی نا. آپ جن کو امام مہدی مانتے ہیں، جن کو امام ہاں جی، مانتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے. جی ان کے والد جی کا نام حدیث کے مطابق عبداللہ اور آمنہ ان کی والدہ کا نام ہوگا، ایسے ہی ہے. جی جی، اور یہ جو 12واں امام جس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ یہ تو نہیں آج ہے، سے 1200-1300 وہ سال آئیں پیدا گے، ہو کے وہ قرآن لے کے دجال بھاگا کا ہوا ہے. مقابلہ کریں گے، امت مسلمہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے، جو وہ اس ٹھیک ہے، طرح وہ کے سب باتیں صحیح ہے، عقیدہ وہ سب رکھتے باتیں ہوں گے، صحیح ہیں. وہ تو ہاں آپ اہل سنت کا تصور پیش کر رہے ہیں نا. میں آپ کے جی سامنے اس 12ویں امام کو کھڑا کر رہا ہوں کہ جو شیعہ جس کو امام مانتے ہیں، جو آج سے 1200-1300 سال پہلے پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی قرآن سر پہ اٹھایا، جو اصلی قرآن تھا شیعہ کے مذہب کے مطابق، وہ لے کر بھاگ گیا. بچپن میں ہی وہ نکل گیا اور وہ غار ثمرہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا قرآن بھی لے نہیں گیا. نہیں، اور اس طرح کا کوئی نہ، مجھے حدیث سے کوئی ایسا ملا ہے کہ جی وہ بھاگ گئے قرآن لے کر، اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں نکلیں گے اور قرآن لے گئے، نہیں، اس طرح کا کوئی تصور میں نے نہ پڑھا ہے، نہ میں آپ نے نا، کتنی جی آپ نے شیعہ کتب پڑھی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں کیوں پڑھوں؟ مجھے پھر پتہ آپ ہے کہ کیسے یہ خانہ بات ہوگی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ تو پھر آپ کو اب کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ کو پتا تب چلتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں ان کو. دیکھیں ایک بندہ اب دیکھیں نا، کسی دو کو چیزیں اللہ الگ الگ قرآن، ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ 12ویں امام حضرت صاحب کا جو عمر تصور، میں نے فاروق، آپ کو ایک منٹ، آپ کو 12ویں میری امام آخری صاحب بات کا، سنیں، میری ہاں بات میں سنیں، سن رہا ہوں، ایک منٹ. آپ کے 12ویں امام صاحب جن کی بات آپ کر رہے ہیں، جو وہ ہاں شیعہ مانتے ہیں، وہ الگ ہیں. اور جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ 12ویں نہیں ہیں، صحیح ہے. وہ جی امام مہدی، ٹھیک ہے، جن کا نام محمد ہوگا. امام مہدی تو ایک ان کو لقب کہہ دیں یا مہدی ہدایت یافتہ سے جی وہ جی مہدی ہوں گے. نام تو ان کا محمد ہوگا، جی اور والد کا نام ان کا عبداللہ ہوگا، والدہ کا آمنہ نام ہوگا. حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ جی جو 12واں امام اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ جو ہے وہ کرشماتی قسم کی ایک الگ شخصیت ہے، جو جی آج سے 1200-1300 سال پہلے پیدا ہوا. پھر بچپن میں ہی وہ بھاگ گیا، اور عباسیوں کے ڈر سے. اور قرب قیامت وہ ظہور ہوگا، اور اس نے یہ شرط لگائی ہے، میں تب دنیا میں آؤں گا جب 313 سچے حلالی پکے مومن شیعہ ہوں گے، تو میں تب دنیا میں واپس آؤں گا. اور میں جب آؤں گا، مطلب اس کے بارے میں پھر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو اصلی قرآن لے کر آئے گا. موجودہ قرآن ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے. اور یہ صحابہ، چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ صحابہ اکرام نے لکھا ہے، اس قرآن کریم کو جمع انہوں نے کیا، لکھا انہوں نے، پہنچایا، اس کو نشر کیا. تو اس قرآن کو شیعہ نہیں مانتے. اور وہ کہتے ہیں کہ چلو وقتی طور پہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں، گھر میں رکھتے بھی ہیں، لیکن اصل قرآن ہمارا امام مہدی لے کر آئے گا، اور وہ قرآن 17,000 آیتوں والا ہے. تو آپ کوئی ایسا ویسا مہدی مانتے ہیں کہ جو نہیں 17,000 بھائی، والا قرآن لے کر آئے گا؟ ہم ایسا ویسا کسی کو نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی مطلب کہ ذہنیت ہے کہ جی ایسے آئیں گے. اب دیکھیں اگر یہ بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا آپ نے دین کا کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. قانون آپ نے سارا لاگو کیا، ٹھیک ہے، یہ عدالتوں کے جو قانون ہے آپ نے بنائے، سارے عدالتوں کے قانون چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پولیس کا معاملات جو ہے آپ نے کیا، زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، اور بے شمار آپ نے کام کیے دین کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ آج یہ جتنا بھی لا چل رہا ہے باہر کے ملکوں میں، آپ زیادہ مجھ سے نالج ہوگا آپ کا، لا چل رہا ہے یا قانون ہے، وہ سارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ غیر مسلم ہو کے ان کی باتوں
پر ان لوگوں کو اتنا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ انہوں نے پورا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا بنا دیا کہ بھائی اس قانون پر چلنا ہے، اور صحیح ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا، اس کا تو ہاں کسی کو ہم انکار کلمہ نہیں گو ہے. ہو کے یہ لوگ نہیں مانتے. ہاں نہیں مانتے، بالکل ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شیعہ کے اندر کفر کی علامتیں، آپ اگر موٹی موٹی دو چار نشانیاں جو چند وجوہات ہم نے یہاں لگائی بھی ہوئی ہیں. ایک تو ہے جی آپ حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر کو نہیں مانتے، یہ تو قرآن کو نہیں مانتے. نہیں. اس موجودہ قرآن کریم کو یہ قرآن اصلی قرآن نہیں مانتے. آپ جی سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں رد و بدل کا قائل ہو تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ وہ تو کافر ہے نا. دیکھیں نا، اس کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے نا جی، اس کا ذمہ اللہ نے دیا ہے، تو کوئی بندہ اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتا. کر ہی جس کی نہیں سکتا. حفاظت اللہ خود کر رہا ہے اس کو کون مطلب کہ بدل سکتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بالکل یہ تو بالکل جاہلانہ سوچ ہے نا کہ جی. سوچ نہیں ہے میرے بھائی، سوچ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، جس پر 2000 سے زائد روایتیں ان کے پاس موجود ہیں ان کی کتابوں میں، کہ اصلی قرآن جو ہے وہ امام مہدی لائے گا. اس قرآن میں کمی پیشی ہو گئی، اس میں حضرت علی کے فضائل تھے، اہل بیت کے فضائل تھے، وہ صحابہ نے نکال دیے. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی روایتیں کل ملا کے 2000 سے زیادہ ہیں، جس میں تعریف قرآن کا عقیدہ ہے ان کے پاس. اور ان کے سارے محدثین، مفسرین، جتنے بھی ان کے امام، وہ سارے کے سارے اس موجودہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں. اور پھر ان اقوال کی نسبت، ان روایات کی نسبت اپنے اماموں کی طرف انہوں نے کی ہوئی ہے. تو ہم ان اماموں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جن کا تصور یہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر کہتے ہیں اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا تھا. امام باقر کہتے ہیں کہ اصلی قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف اماموں کے پاس ہے، اماموں کے علاوہ کسی کے پاس اصلی قرآن ہے ہی نہیں ہے. حضرت علی، ان کے ہاں مولا علی کہتے ہیں کہ اصلی قرآن میرا بیٹا مہدی لے کر آئے گا قیامت کے قریب. اب یہ ساری چیزیں جب ان کے اماموں کو، ان کی روایتوں کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان اماموں کی بات کرتے ہیں. وہ ان کے نزدیک امام ہے، ہمارے نزدیک تو وہ امام تو نہیں ہوئے نا، دجال ہوئے وہ تو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہم وہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں، جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، امام تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایز ان کی اولاد میں ہونے کے ہم تعظیم کرتے ہیں، اور ہر ایک کی کرتے ہیں. ہر مسلمان کی جو ان کی اولاد میں نہیں بھی ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، مسلمان ہے، اچھا بندہ ہے، تو بس ٹھیک ہے. باقی سنیوں کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا کہ کوئی 12 امام ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نہیں لائیں گے تو دار اسلام میں ہی نہیں رہیں گے، سنی نہیں رہیں گے. ایسا کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، بے رسول اللہ شک. صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عصمت بھی کسی کے لیے نہیں ہے، اور انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں. اور یہ بے اپنے شک. 12 اماموں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں، جیسے انبیاء منصوص من اللہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ ان کو نبی متعین مقرر کرتا ہے، اسی طرح 12 امام اللہ مقرر کرتا ہے، اللہ نے کیے ہوئے ہیں. اب یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے. نبیوں کو تو اللہ ان کو تو نبی بناتا ہے، لیکن 12 اماموں کو تو اللہ نے نہیں بنایا ہوا. بالکل. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء وہ مفترض الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے. ٹھیک ہے، ان کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر وحی کرتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ان کی اطاعت فرض ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں کی اطاعت بھی فرض ہے، جس طرح انبیاء کی فرض ہے. اب کسی غیر معصوم کی اطاعت اس طرح کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، انبیاء سے کوئی بھی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں سے بھی کوئی غلطی، گناہ نہیں ہو سکتا. ایز اے بشر ہے، انسان ہے، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ لیکن یہ ساری انبیاء کے اندر جو صفات ہیں وہ انہوں نے اپنے 12 اماموں کو بھی وہ دی ہوئی ہیں. تو یہ نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہی کا نظام بند ہو گیا. ہاں، چوتھی چیز یہ ہے، میں سوری بھول گیا اس بات کو، آپ یاد آ گیا، جو چیز ہے وہ کہ صرف اماموں ہاں. کے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے، ملہم من اللہ ہے. اب یہ چیز دیکھیں نا، یہ ختم نبوت کے منافی انہوں نے 12 امام بنائے ہوئے ہیں. جی آپ جاری رکھیں، میں نے آپ کی بات کو ہٹایا، بولے. دیکھیں اب یہ ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دور و مدار سارا نیتوں پر ہے. اسی طرح ہی ہے نا جی. جی رسول اللہ کفر کرتے وقت جو بھی نیت ہو، اخلاص جی نیت جی بھی ہو، تو وہ کفر ہی رسول رہتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، بلکہ نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے تمہاری بخشش ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. جب ایسے ہی ہے. انہوں نے یہ فرما دیا کہ بھائی آپ کے اعمال
عملوں کے مطابق آپ کی بخشش ہوگی۔ اپنی بیٹی کو خبردار کر دیا کہ بھائی آپ خالصاً دین اسلام پر قائم رہیے گا اور اسی پر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہے اب بالکل۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون بندہ کتنا پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مطابق وہ اس کا درجات ہیں۔ اب بالکل ہم ایسے نے ہی ہے۔ درجات ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں غلط افواہ پھیلائے کہ جی یہ تو اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، تو یہ تو پھر بہت غلط بات ہے، جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، تھوڑا سا، جس میں صحابہ کرام کی ان گستاخیاں لکھی ہیں۔ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو میرا دل ہی نہیں مانا کہ میں کیوں مان پڑھوں۔ بھائی آپ صحابہ کرام کی پھر گستاخیوں پہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی گستاخیاں کیا، یہ قرآن، ختم نبوت، رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا، غلطی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا ایسے گیا۔ ہی ہے، ایسے اور ہی ہے، یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اور حضرت علی برابر ہیں، چونکہ حضرت علی چھوٹے تھے اس لیے ان کو نبی نہیں بنایا گیا، ورنہ حضرت علی کو نبی بنایا جاتا۔ ان کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ جی موجود ہیں، موجود ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، آپ لفظ امام نہ کوئی اور ایڈ کریں اور ان کو ٹارگٹ کریں، نہیں، وہ کیونکہ امام کہتے ہیں نا، وہ ہاں، امام لفظ کہتے ہیں، وہ لفظ امام کہتے ہیں امام تو آپ ہم کو تو پتہ ہے اماموں بڑا سے۔ مرتبے اور مقام والا لفظ ہے، میں یہ بس کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی بات درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ یہ جن کو امام کہتے ہیں، جو ان کا تصور ہے، اور پھر یہ امام ہی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں پھر؟ آپ بتائیں، ہم کہ 12 کیا کہیں؟ چلیں آپ بتا دیں وہ کون سا لفظ استعمال کریں۔ کوئی بھی اگر کوئی بھی بندہ ہے نا، ہوں۔ جیسے آپ 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 کا نام مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو کہیں نا امام، تو کس جیسے بندے کو ابھی ہم بولیں؟ جو بندہ اس چیز پہ بحث کرتا ہے، آپ کے ساتھ تکرار نہیں، کرتا ہے، کیونکہ گفتگو ہم کرتا تو ہے، شیعہ مذہب پہ بات آپ کر رہے ہیں نا۔ دیکھو عثمان جی بھائی، مثلا آپ کی جگہ یہاں کوئی ایک شیعہ بیٹھا ہو تو ہم اس سے تو اس کی ذات پہ بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم تو شیعہ مذہب پہ کر رہے ہیں۔ جب شیعہ مذہب پہ بحث کریں گے تو پھر وہاں پہ اماموں کا ذکر ہوگا، وہاں پہ ان کے عقائد و نظریات کا ذکر ہوگا، تو پھر وہاں یہ چلتا ہے کہ پہلے امام نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے امام نے یہ کہا، چوتھے نے یہ آپ کہا، یہ کہنا پڑتا آپ ہے نا۔ آپ ان کو بلوائیں، ان کو دعوت دے کے بھائی آئیں دلائل کے ساتھ، آپ بھی بات کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آتے بلا ہیں کے عثمان بھائی، بات آتے کریں۔ ہیں یہاں پہ، آتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے ان سے۔ ہم تو یہاں جی پچھلے 7-8 مہینوں سے الحمدللہ ہماری براڈ ہوتی ہے یہاں پہ، بے شمار جی شاید سینکڑوں شیعہ آئے ہوں گے، ان سے ہماری جی جی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو جی ایسے ہی ہوتا ہے، ان سے بھی بلواتے ہیں، لیکن ہم بھی ان کو بتانے کے لیے، اگر میں نام ہی نہیں لوں گا، بتاؤں گا ہی نہیں کہ کس تمہارے امام نے یہ بات لکھی ہے، تمہاری کون سی کتاب میں، تو میں کیسے چیز کو واضح کر سکوں گا؟ اس لیے آپ کی بات الگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے، ایز اے عقیدہ تو وہ امام اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ کسی چیز کے امام ہے نا، فقہ کے امام ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری ہیں، ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے امام ہیں۔ پھر اسی طرح ہم تو محلے کی مسجد کو والے، اس کو بھی نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں، تو وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ اس لیے امام ہے۔ لیکن یہ جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اماموں میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، احترام کے لائق ہیں، ان کا بغض جو ہے نفاق ہے۔ اور پھر حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو دیگر نیچے جو انہوں نے 12ویں امام بنائے ہوئے ہیں، پھر پیچھے 11ویں امام، پھر اسی طرح 10ویں، 9ویں، 8ویں، 7ویں، یہ جو امام بنائے وہ کسی چیز کے امام نہیں ہے نا۔ انہوں نے کیا لکھا، کیا دیا امت کو، کیا پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں، اس میں نام ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیں جی، یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا تصور ان کے حوالے سے الگ ہے، جو ہمارا تصور ہے الگ ہے۔ الگ ہے، بالکل ہاں، تو ہم الگ ہے، پھر ایسے ہی ہے۔ ہم جس طرح ہمارے مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے اور کہے کہ تمہارے مذہب میں یہ ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کون راوی ہے اس میں، کون سے کس صحابی نے حضور سے نقل کیا۔ تو اس طرح یہ ہم سے پوچھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہے کہ 17,000 آیتیں ہیں قرآن میں، اصلی قرآن وہ جی ہے، جی یہ پوچھتے ہیں کس نے کہا، تو ہم نے کہا فلاں امام نے یہ کہا۔ تو اس سینس میں اور اس طریقے سے ہم یہ ان کو بتاتے ہیں، ورنہ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ الگ الگ ہیں دونوں۔ جی، ہمارے جو حضرت حسن ہیں وہ الگ ہیں، انہوں نے جو مولا حسن بنائے ہوئے ہیں وہ ایک الگ ہی تصویر ہی ساری کچھ الگ ہی بنائی ہوئی ہے، وہ آپ ان کی تدبیریں زبان سے۔ چینج ہوئی ہیں۔ ہاں، اسی طرح حضرت حسین ہمارے ہاں ان کے دیکھیں تو الگ ہے، ان کے ہاں لے جائیں تو وہ نعوذ باللہ ڈرپوک بھی ان کو ثابت کیا ہوا ہے، ان کی کیا کچھ ان کو نہیں بگاڑ کے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے ان کی۔
बनाई हुई है बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी ये अल्लाह तआला को देखें, हमारे यहाँ हम अहले सुन्नत हैं, हम समझते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुर थे, शुजा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गैरत का सबक दिया है। और इनके नज़दीक क्या है, ये समझते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद थे, हज़रत उमर आए, आके हज़रत फ़ातिमा को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह लाते मारते रहे, दरवाज़ा भी जला दिया, लाते मार के पेट में बच्चा भी उनका ज़ाया कर दिया, पसलियाँ भी तोड़ दी, और घसीटते रहे। हज़रत अली बैठ के देखते रहे। क्यों देखते रहे? रसूलुल्लाह ने मना किया था कुछ भी नहीं करना, तलवार नहीं उठाना। क्या आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बुज़दिली का सबक सिखा के गए अपनी उम्मत को, नहीं अपने नहीं सहाबा को? बिल्कुल नहीं। तो ये ये तो इन्होंने जो हज़रत सोचना अली का भी तसव्वुर दिया हुआ है सोचना वो भी ये है। गुनाह है, सोचना भी गुनाह है। हाँ, तो ये जो जो हज़रत अली का तसव्वुर इन्होंने दिया है वो एक अलग है। तो हम समझते ही अलग नहीं यार ये वो अली है जिसकी ये, जो हमारे अली हैं जिनको हम मानते हैं, जो हमारे चौथे खलीफा हैं, वो अली हो ही नहीं सकते हैं। इन्होंने जो कोई अली बनाया हुआ है कि दरवाजे पे उसकी बीवी को मार दिया, वो अलग तसव्वुर है, वो कोई अलग ही है, शख्सियत भी फिर अलग ही है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपकी ब्रॉड पे आके, बड़ी तहज़ीबाना गुफ्तगू हुई, वरना कहीं भी जाएं तो वो गालियों पे या ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो नहीं अल्लाह नहीं, आपको ऐसी कोई बात नहीं है हमारी ज़ातियात। यहाँ तो हमसे सबको शिया की बात करते हैं। हम तो हमारे ये सूफी बाबा बैठे हैं, मिनी मास्टर साहब हैं, बाकायदा जी उनकी किताबें, चूँकि आप सुन्नी हैं, आपको जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं। जी बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल शिया बिल्कुल होता है ना तो हम उनको यहाँ उनकी किताबों से हवाले सामने स्कैन लगा के दिखाते हैं। मसलन मैंने सही जो बात बात भी की है कि शियों की किताब में लिखा है कि वो 17,000 आयतों वाला कुरान मानते हैं, तो वो कहते हैं कहाँ पे लिखा है, तो हम फ़ौरन उनके लिए सामने लगा के रखते हैं कि ये लिखा हुआ है। चलें, सलामत रखे जी। आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आप जज़ाकल्लाह, बहुत सब शुक्रिया। आते रहा करें हमारी ब्रॉड यहाँ इंशाल्लाह कायम ज़रूर करते मैं रहे। आया करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर ये इंशाल्लाह। ऊपर हक नवाज डॉक्टर साहब हैं हमारे, मैंने आपको उनको, फॉलो कर लिया, मैं हाँ इंशाल्लाह जी, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। वालेकुम सलाम। अली साहब ऊपर आ जाएं, अली रहमानी साहब। नीचे गालियां देने से आपको क्या मिलेगा, ऊपर आके आप बात कर लें। जी सूफी बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं तो मुफ्ती से दुआ कर रहा हूँ कि बर्मा इमाम आए और वो यजीद की 80 लाख फौज जिंदा करे। मैं वो दोबारा जो है ना जंग देखना चाहता हूँ, बैटल फील्ड इनकी दोबारा धुलाई हो, 80 लाख फौज इनकी वो बड़ा ड्रामा लगना है फिर। हाँ, बर्मे अच्छा को जी। देने पड़ जाने, उसने कहना पिछली बार तो मैंने किया भी कुछ नहीं था तो मेरा इल्जाम लगा था, इस बार तो पूरा ईरान में पटना है। ये मैं हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इमाम आपका साहब के नाम मुल्क क्या है? में जिंदा ना करें 80 लाख, वो गले पड़ जाना है। जी अहमद साहब, क्या कह रहे हैं आप? जी इलियास भाई, कैसे हैं? जी मैं तो चाहता हूँ शिया यार मुझे कोई घर दे दे इधर, तो मैं रजत के बाद जो है ना उसको वापस लौटा दूंगा यार। कोई शिया है जो मुझे दे? मैं तो मेरा मातम करने का अंदाज एक और तरह है ना मौलाना साहब। हमारे वहाँ ये थबियों पे रोटी पकाता है ना, थबियों पे। जी जी। तो वो थबी जब गर्म होता है तो हम जो है ना, मैं मातम के लिए फिर वो गर्म थबी पे ऊपर बैठ जाता हूँ। तो मेरे मातम का अंदाज ये होता है, पिछवाड़ा अच्छा जलाता हूँ मैं अपना। तो आपके पिछवाड़े का क्या कसूर है? तो कसूर तो उसका ही है, वो मेरे पीछे क्यों लटकी है, ये उसका कसूर अच्छा, सारा कसूर उसका है। कसूर उस बेचारी की ये है करना ना। पचवाने से आजिज़ी हासिल किया करें। तो बस हम शियों में तो बस ये कमाल है भाई। तो कोई आपके साथ, हमारे साथ कोई मुनाजिरे के लिए कोई बंदा तैयार नहीं? अच्छा, आप खान साहब मैं खान तैयार हैं जी साहब, आपके साथ। मैं बड़े चिनार का खाने में। वो ऊपर भाई आप मैं तैयार हो सकता था, पर आप पठान हो इसलिए हम तो नहीं मान सकते यार। नहीं, खो पठान भी इंसान है पठान की एक बात बताए, हाँ, वो पठान की एक बात बताते हैं हमारे बड़े, वो कहते हैं एक दफा पठान सफर कर रहा था जहाज में, हाँ। वो कोई बैठ गया पहले नंबर पे सीट पे। पठान की एक बात, मैं तो इसी से बैठ के जाऊंगा। वो जिसके पास नंबर 1 वाली सीट थी वो बेचारा परेशान हो गए, तो बदमाशी कर रहे हैं, मैं जिस नंबर पे बैठ रहा हूँ वो उठ नहीं रहा। तो उस पास सामने पठान बैठा हो तो वो गया, क्या यार इसको समझाओ। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं दुबई जा रहा, जैसे कि उन्होंने कहा सिर तो दुबई नहीं जाएगा। वो फौरन उठ गया, वो जब ही उठ गया उस सीट से। यार मैं भी आप एक पठान का लतीफा आपको सिर्फ सुनाता चाहता नहीं हूँ। भाई, ओ भाई नहीं, इधर पठानों की लतीफे सुनाने की थोड़ा ही है, हम खुद पठान है, हमारे साथ आप पठान। बड़े हंसोगे यार, सुन लो। नहीं, ओ भाई
खुदा की आप मिस कर रहे हो कुछ भाई, मेरे मिस कर अच्छा रहे हो, बड़ा प्यारा। हैदरी साहब, मैं ये भाई को ना लतीफ़े सुनने का बहुत शौक है। मैं एक लतीफ़ा आपका इजाज़त तो सुनाऊंगा, बहुत शॉर्टकट। नहीं, पहले मेरा नंबर है खान साहब। चलो ठीक है, चलो मेरे बाद पहला आपका नंबर है। नहीं तो नहीं, ये ना मेरा नंबर है पहले यार, मैं होस्ट से मेरे रिक्वेस्ट बाद करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक आप ऐसा करेंगे यूदर साहब, आप तापिश भाई का नाम ले लें, किसी पठान पंजाबी न बोलें। और बिल्कुल चलो तापिश भाई टापिश जब भाई, मैं और आपको जब बड़ा ये प्यारा, लतीफ़ा आप सारे हंसेंगे, सुने ना, आप सारे और हंसेंगे। जब ये सुनाएंगे तो ये आपका नाम लेंगे। आपका क्या नाम है? मलिक आसिफ। हाँ आसिफ भाई, आप जब सुनाएंगे तो आप इसका नाम लें, ये जब सुनाएंगे तो आपका नाम लेंगे। इनका चलो क्या ठीक है, नाम है? बिल्कुल कबूल। इनका मेरा क्या नाम नाम है? तापिस। तापिश ईरानी। तापिश ईरानी मेरे साथ एक इस्लामाबाद में से बैठे, हम इस्लामाबाद से अच्छा हमने फ्लाइट ली थी, हम फ्रैंकफर्ट आ रहे थे, तो वो बड़े अच्छे तापिश भाई मेरे दोस्त थे। तो अभी जहाज उड़ा नहीं था, तो मुझे वो मैं तापिश भाई कहते हैं यार ये जो एयर होस्टेस है ना, ये मुझे बड़ा तंग करती है। मैंने कहा क्यों करती है तंग? यार आप इससे पूछो क्यों तंग करती है। तो मैं पीछे चला गया, मैंने कहा बीबी आपने क्यों तंग किया इसको, क्यों ये मेरे साथ जा रहे हैं, हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, जर्मन इस्लामाबाद से हमारी फ्लाइट है। तो कहती है इधर आए मेरी बात सुने। तो वो तापिश भाई कहने लगे ये कैंटीन वाला मुझे तंग करता है। मैंने कहा ये कैंटीन वाला कौन? वो केबिन बना था ना वो क्रू के लिए। तो मैंने कहा जी आप क्यों तंग करते हैं इसको? कहते हैं मैं आपको पीछे बड़ी सीट देती हूँ, आप मेहरबानी करके पीछे चले जाए। मैंने क्यों चले जाए? कहती है ये खान साहब नस्वार डाल रहे हैं और इधर थूक रहा है, तो मेहरबानी करके इनको पीछे ला जाए, डब्बा भी दे दो, उधर नस्वार डाले हैं जी। अच्छा, अपना मुफ्ती साहब आपकी अच्छा इजाजत मिली है, मैं भी एक भाई के ऊपर एक लगाऊंगा, बहुत सीधा साधा। जी आसिफ भाई इनका नाम है। ये भाई तो ना आसिफ भाई, जी जी आसिफ भाई हमारे पास हमारे साथ याकोड़ा खटक के मदरसे में हम एक जगह पढ़ते थे ना मौलाना साहब। जी तो हम पठानों में ये जो कहीं बड़े जगह में ना कोई बैठ के एक जगह कोई वो अपना पुसी मुसी छोड़ता है, तो ये बहुत बुरी बात होती है ना। हाँ वो तालिबुल इल्म साथियों में से किसी भाई ने वो एक पुसी छोड़ा, तो उसने अपने बिस्तरे बंद लिया कि भाई मैं इस मदरसे को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा इधर गुजारा नहीं, लोग मुझे सब थाने देंगे ना। हाँ तो फिर बड़े मौलाना ने कहा कि भाई सब जमा हो जाओ, इस भाई की तरह हम सब ने होना है ताकि इसके ये इधर से जाए ना। तो मौलाना ने सबको बिठाया, हर किसी को कहा ओ हो जाए, एक पुसी तुम मारो, एक तुम मारो, एक तुम, सबसे एक एक मरवाया कि सब एक जैसा हो जाए, किसी को कोई किसी को ताना ना दे। तो भाई बीच में ना ये आसिफ भाई का नंबर आ गया, ये लास्ट में, ये बड़ा मोटा मोटा सा है, लास्ट में बैठा है, तो इसका नंबर आ गया, इसने जोर किया, इसने टटी किया। वो मौलाना ने कहा ओ तेरा बेड़ा गर्क, मैं एक पुसी के लिए तो सबको बराबर किया, अब तुम्हारे लिए एक एक टन टट्टी कौन करेगा, तुम मदरसा छोड़ के बाहर जाओ। तो ये हमारा आसिफ भाई आज तक फिर वो मदरसे में वापस लिया है। देखिए मैं सारा दिन आज बिजी था बहुत ज्यादा, मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ जी। अच्छा सारा दिन मैं बिजी था, आप लोगों ने मेरी थकावट दूर कर दी है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अच्छा आसिफ अल्लाह भाई, हाफिज। एक छोटी सी और भी है, अगर आप रुक जाओ, एक छोटी सी है वो, ये ना अपना मुफ्ती साहब ये था, ये आसिफ भाई हमारे साथ था, तो ये हम एक जगह पे बैठे थे, तो कोई बोल रहा था मैं राजा हूँ, मैं इतना जोर वाला, कोई बोलता मैं पठान हूँ, कोई मैं बोलता मैं तापिस हूँ, ये बोलता है मैं आसिफ हूँ। तो ना एक बूढ़ा आदमी आगे कह रहा है आप लोग अपने अपने तारीफें करते हो, अब मैं आप सबका मालूमात करूंगा कि आप में से कौन सा बड़ा गैरती है। तो उसने ना सर्कस का एक बूढ़ा सा शेर कमरे के अंदर खोल दिया। ओ मुफ्ती साहब, सबसे पहले आप भी उस कमरे में थे, आप भी फरार कर गए, मैं भी फरार कर गया, भाई आसिफ भाई बिल्कुल बीच में खड़ा है, इसने फरार नहीं किया। तो बूढ़े ने कहा भाई आसिफ भाई को हार पहनाओ, ये भागा नहीं शेर से। तो हम आसिफ भाई के नजदीक गए तो बदबू से आ रही है ना। वो मर्जियों वाली बदबू तो नहीं आ रही यार, नहीं एक मर्जियों वाली नहीं आ रही, खुशबू आ रही थी। तो हम नजदीक गए कि भाई आसिफ भाई को हार पहना, तो आसिफ भाई ने दूर से कहा भाई हमें नजदीक मत आओ, मैंने टट्टी किया है। तो हम देख आसिफ भाई आपने एक सुनाया और दो सुना दिए। आसिफ भाई अब आप जा सकते हो, थकावट आपकी बिल्कुल दूर हो गई। अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह मर्जियों के ऊपर लानत भेज के मैं जाऊं। करोड़ बार असल में ऐसा करें आसिफ भाई ऐसा करें, मिर्जाई और शियों दोनों पे कर दें। दोनों पे नहीं, शियों पे मैं नहीं डालता क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले नहीं साहबा नहीं के ओ गुस्ताख मिर्जा आसिफ भाई ऐसा ना करें। आपको पता है कि जो कादियानी है, मिर्जाई है, वो रसूलुल्लाह के बाद एक नबी मानते हैं और शिया 12 नबी मानते हैं और नबियों से अफजल मानते हैं। 12 इमाम मानते हैं। मैं इसलिए कि जो वो 12 इमामों को अंबिया से अफजल समझते हैं। नहीं देखें, जो कलमा पढ़ने वाला है ना, तो आपको कादियानी पता भी है कलमा पढ़ता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में जब उनके जो मुखालिफ थे ना, तो आपने हजरत उमर के सारे जो
कोलीग थे, उन्होंने पूछा कि इनके पीछे नमाज हो जाती है, वो कहने लगे बेशक ये मुखालिफ हैं, लेकिन जो अल्लाह को वादा उला शरीक मानते हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी, इनके पीछे ज़रूर हो जाएगी। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते तो फिर नमाज नहीं होगी। ये फिर तो कादियानियों के पीछे भी हो जाएगी, वो भी अल्लाह को कादियानी काफिर है, उनके पीछे नमाज नहीं होती, उन्होंने दूसरे नबी का और नबी और ये क्या हुआ, पठान भाग गया यार। तो देखे ना आसिफ भाई, पठवान की नस्वार खत्म हो गई। नहीं आसिफ भाई, मसला इस तरह है कि कादियानी लानती है, मलून है, रसूलुल्लाह के बाद एक नबी मानते हैं, और शिया अपने 12 इमामों को इमाम मांगते हैं। पूरी बात सुन ले, इमाम मानते हैं, सिर्फ इमाम कहते हैं, मानते क्या है, अपने 12 इमामों को नबियों से अफजल मानते हैं। जो नबी देखिए, ये इख्तलाफ ना करें इस दुनिया में, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, मैं कादियानी से आप इख्तलाफ कर रहे हैं? मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन मैं शिया, देखे ना, जो कलमा पढ़ने वाला हो ना, जिस तरह कादियानी तो नबी के उम्मत नबूवत पे डाका डाला है ना, तो शिया जो भी मानते हैं इज्जत तो करते हैं ना, अहले बैत की जो भी करते हैं। शिया ने बात सुने आसिफ भाई, शिया ने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे 12 दफा डाका मारा और अहले बैत की इतनी गुस्ताखी। नहीं, आपकी अपनी मर्जी, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। मैं नहीं, आपको दिखा देते हैं ये मेरा देखिए, आप जिस बंदे से बात किए कर रहे हैं ना कि वो बंदा जाहिल नहीं है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है कादियानियों के मुतालिक भी, हर चीज में। अच्छा, देखे ना, आपने पढ़ा हुआ है? मैंने हर चीज पता है, मैं इस टाइम गाड़ी चला रहा हूँ और ना मैं बहस करने के मूड में हूँ, ना मुझे। आपकी बहस करवाते भी नहीं है आसिफ भाई, आपको सिर्फ इतनी बात बताते हैं, शिया इस मौजूदा कुरान का मुनकिर है और वो कहता है असली कुरान हमारा 12वां इमाम लेकर आएगा। कुरान का मुनकिर है। मेरे शिया बहुत दोस्त है, क्योंकि आप बहस के मूड में भी नहीं है। मेरे शिया बहुत दोस्त हैं, शिया कुरान के मुनकर नहीं है। अभी दिखाते हैं, अभी एक मिनट। नहीं, शिया नहीं, कुरान के मुनकर नहीं है। आपको हम उनकी, अच्छा शिया बस वो साहबा के जो उनके गलत है, नहीं, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है आसिफ भाई, आपकी गलतफहमी है। शिया की सबसे मोतबर किताब उसूल काफी, जिस तरह अहले सुन्नत की यहाँ बुखारी है, मुझे पता है, मेरे पास घर पड़ी हुई है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, उसी आपके घर पड़ी हुई है ना? बातें पता भी है, फिर भी उनको काफिर नहीं कहते हो? हाँ जी, सारी बातें पता भी है आपको। जो कलमा पढ़ने वाला एक तरफ कहते हो मुझे पता है, अहले बैत का जो है ना, नहीं, फिर कहते हो मैं उनको मानता भी नहीं हूँ। ये क्या बात है? मैं देखे, जो एक गलती करता है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। गलती क्या है? इनके इमाम ने गलती की है, फिर इनके इमामों को नहीं मानना चाहिए ना? ये इमाम वो नबी की औलाद है यार, अल्लाह को नबी की ये इमाम जाफर ने कहा, देखो जरा, जब देखें उसूल काफी है, उसूल काफी है। आप यजीद के ऊपर लानत भेजते हैं। सब्र करो यार, यजीद याद आ जाता है एक तो फौरन आप लोगों को यार। नहीं, यजीद के ऊपर आप लानत भेजते हैं। अरे इमाम जाफर पे सब्र करो, इमाम जाफर को सुनो प्लीज, बयान करें जी, बयान करें। ये देखें उसूल काफ़ी है जिसकी आप बात कर रहे थे, और शिया की मोतबर किताब है, ये अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इमाम जाफ़र से। वो कहते हैं इन्नल कुरान अल्लज़ी, बेशक वो कुरान, जा बिही जिब्राइल, जिसको जिब्राइल अमीन लेकर आए, इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सब आता अशरा अल्फ आयतिन, उसके अंदर 17,000 आयतें थी। अब मुझे बताएं कि जो कुरान करीम को माने कि ये कुरान करीम कम है, असली कुरान 17,000 आयतों वाला था, अब वो मुसलमान है काफिर आपके नज़दीक? देखें, मैं इन चीज़ों में मेरे शिया बहुत जानने वाले हैं, ये मैं चीज़ें उनसे पूछ चुका हूँ, उन्होंने कुरान तक दिखाया, उन्होंने कहा जी हमारा कुरान यही है जो आप पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं है। इमाम जाफर का ये नहीं है ना? देखें, मैं जो आपकी अपनी आप किसी मकतबे, मुझे आपकी मेरे दोस्त ना करो, इमाम जाफर का ये नहीं है। देखें, जो हमने किताबें लिखी है ना, अगर आप किसी शिया, आपने नहीं लिखी हजरत, ना आपने लिखी है ना उन शिया दोस्तों ने लिखी है। ये इमाम जाफर है, ये कुलैनी है, ये उसूल काफी है, शिया के मजहब की बुनियाद है। ठीक है, लेकिन हमारी किताबों को जो हम हवाले पेश करते हैं ना, वो ये चीज नहीं मानते। ठीक है, वो कहते हैं ईरान की किताबें नहीं है, ये उनकी किताबें। मैं नहीं मानता, ये क्या होता है भाई? नहीं, वो नहीं मानते। अच्छी बात है, इमाम जाफर का इनकार करो, आप कहते हैं इमाम जाफर को छोड़ दो। नहीं, वो नहीं मानते। मैं की रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ भाई, सुन्नी हो जाओ, कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो, अपने इमाम जाफर से तौबा करो। ओ यार, मेरी बात सुनो यार, खुदा के बंदे, अगर रसूल काफी को छोड़ दे, हम तो दुआ करते हैं। रसूल काफी कबूल करने वाली बात है। मैं पाकिस्तान से लेके आया हूं, रसूल काफी मेरे पास पड़ी है। कहते हैं जो आपके रसूल काफी में जो हमारे लिखे हैं। आसिफ साहब मुझे बात बताओ, शिया अपना दीन निकालता किधर से है? रसूल काफी से निकालते हैं ना? हदीस को तो हम उधर बैठे हुए हैं, हदीस को तो नहीं मानते वो, ज्यादातर हदीस बुखारी और मुस्लिम। अच्छा, पक्की बात है, नहीं रसूल काफी को नहीं मानते वो। जो हमारी, सुन लेना यार, आप जब आप किसी से बोलें तो थोड़ा हौसला रख लिया करें। आसिफ, शिया रसूल काफी को मानते नहीं मानते? मेरी फिर सुन लो ना, मैं जो बात किया था, मेरे बहुत जानने वाले शिया हैं, मैं पाकिस्तान से रसूल काफी लेके आया हूँ, वो इसको नहीं मानते, वो ईरान की जो छपी हुई है ओरिजिनल है, हमारे पास वो पड़ी है, ईरान की पड़ी है, इधर रसूल काफी भी 3-3 4-4 फिर रही हैं। बहरहाल ये है कि मैं जो कलमा पढ़ने वाला मुस्लिमों के अलावा, आपने शिया के लिए झूठ बोला हमारे सामने। नहीं, मैं शिया को नहीं कहता, इसलिए कि मैं किसी के ऊपर लानत नहीं, बात सुने मेरी, मैं कायल ही नहीं किसी को मर्जी कर ले। एक बात याद रखना, मुनाफिकत नहीं करनी है। मुनाफिकत मैं नहीं कहा शिया का डिफेंड ना करो, गलत डिफेंड ना करो। या तो अगर इमाम जाफर ने ये कहा होता तो इमाम अबू ये इमाम जाफर ने कहा है, आपको किस शिया ने कहा है कि असल किताब में नहीं लिखा हुआ? उन्होंने तुम्हें अरबी टेक्स्ट पढ़ के दिखाया है।
अच्छा आप तो आप लड़ाई करने में बोल रहे हो, इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं आप ना मसला शिया करते हो हूँ। यहाँ पे बैठ के। नहीं, असल में आपने ये किया था जाते वक्त यूजर भाई, आपने कहा कादियानियों पर मैं लानत करता हूँ, तो मैंने आपको एक दफा खत्म नबूवत पर डाका मारने वालों पर भी लानत करवाने का बोला, फिर और कहा कि जो 12 दफा करते हैं उन पर भी भेजो। यहाँ से बात आगे चली थी, नहीं, तो देखिए लानत अगर करने करवाने की बात आपने शुरू की थी। हम हनफी हैं, हमारे इमाम अबू हनीफा अगर उनके शागिर्द थे इमाम जाफर सादिक के, अगर उनकी आप कोई किताबों में ये किसने कहा है इमाम जाफर के शागिर्द थे? 2 साल उनके पास पढ़े ये हैं किसने कहा है? हैं जी, ये आप अपनी किताबें उठा के देख पढ़ लो लो। ना, मेरी किताबें नहीं, हाँ। अपनी किताब बताओ, किधर से पढ़ा है? इमाम अबू हनीफा ने किधर खुद से कहा पढ़ा है, है? किधर से पढ़ा है? हैं जी, किधर से पढ़ा इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि मैंने सारी जिंदगी मैंने है? ओ भाई जो कहा है किधर पढ़ा है आपने? किधर पढ़ा है आपने? मैं आपको अभी, मैं तो गाड़ी में आपने बैठा हूँ, अभी मैं आपको निकालो, हवाला निकालो। भी दे दूंगा। हाँ, किताब निकालो का निकालो नाम बता दें, किस किताब में निकालो पढ़ा? निकालो। यार ये फितना ना करें, इस फितने से फितना पाकिस्तान नहीं, को झूठ नुकसान पकड़ा होता गया तो बोलना बंदे, ऐसे नहीं करोगे बच्चे, ऐसे नहीं करना ना। है, आसिफ नुकसान साहब, होता है, इन आपने चीजों बहुत से सारे झूठ नुकसान बोले, होता है। आपने एक और झूठ बोला है। हाँ। इमाम अबू हनीफा जाफर सादिक के शागिर्द थे, और जाफर सादिक जी। से 3 साल बड़े थे, और शागिर्द थे उनके पास पढ़ा उन्होंने। 3 साल बड़े थे। और यार इमाम अबू हनीफा का खुद कौल है। बात सुनो, तुम्हें पता है, हाँ। बात सुनो, तुम्हें पता है इमाम अबू हनीफा का उस्ताद कौन है? इमाम यूसुफ थे। हम्माद बिन अबी सुलेमान है, बेवकूफ इंसान। यार आप इब्राहिम नखई है। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करो इसलिए कि आप गलत और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो यार। यार। आप मेरे जहन्नम और जन्नत आपको का सुनो, फैसला मुझे मसला क्या है पता है? मुझे मसला क्या है? मसला आप जैसे लोगों से है, कहते हो मैं हनफी हूँ, अंदर से पक्के शिया होते हो। मेरी बात सुन, आप लोग जो है ना जन्नत और जहन्नम का फैसला अल्लाह पे छोड़ दे, अपने आप को ना छोड़ा करो। यही तो पाकिस्तान तुमने के कादियानियों के मुकाबले में क्यों जन्नत जन्म के फैसले किए यहाँ पे बैठ के? आप कर रहे हो। मैं कादियानियों पे लानत क्यों की मैं फिर? कादियानियों के ऊपर मैं लानत तुमने देता हूं। कादियानियों के ऊपर जन्नत जन्म का फैसला क्यों किया फिर? इसलिए कि उन्होंने हमारे नबी ना को शिया की बारी आती है तो अल्लाह पे छोड़ दो, नहीं, कादियानियों की बारी आती है तो सीना चौड़ा कर लेते हो। नहीं, मैं शिया नहीं 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 नहीं, ऐसे ना किया करो। मैं शिया को नहीं जाती नहीं नहीं, तौर ये पे बात सुनो, ये जो सुनी लोग होते हो ना मैं हूँ हनफी जी, लेकिन मैं शिया भी मैं जानता हूँ। यार इस तरह शियों के सारे कुफरों को डिफेंड कर रहे हो। इस तरह करो, आप अकेले जन्नत में चले जाओ, बकाया सब नहीं नहीं, बात सुनो, जो तुम कलमा और तुम्हारे पढ़ने वाले शिया जिनको सबको तुम डिफेंड कर निकाल रहे हो, दो, सारे के आप सारे चले जन्नती हो। जाओ। और खबरदार अपने आप को हनफी कहा तुमने, तो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले नहीं हो। आप मुझे एक सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात आप सुनो, मुझे आपके मुझे पास मुझे सुनो अथॉरिटी मेरी क्या है बात कि सुनो, मुझे इमाम अबू हनीफा मुझे ये का नाम दिखाओ, आने मुझे वाला? सुनो, चुप करो चुप हाँ करो, जी। मुझे ये बताओ इमाम अबू हनीफा ने 12 इमामों के बारे में क्या कहा है? बताओ मुझे। इमाम अबू हनीफा 12 उन्होंने 12 इमामों के बारे में कभी कोई गलत चीज नहीं कही। आप नहीं, लोगों ने क्या बना कहा है? ली क्या है। कहा है? आप 12 इमामों देवबंदी को हैं, मानते थे? मुझे ये बता, आप देवबंदी हैं? सुनो ना, 12 इमामों को मानते थे। नहीं, आप देवबंदी हैं। अब बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? इमाम देवबंदी अबू वाले हनीफा हदीस को हैं। बताओ मुझे, हम इमाम आप अबू हनीफा ने सुन्नत 12 वल इमामों को जमात हैं, माना? देवबंदी बरेलवी कुछ नहीं है। हम हाँ, मैं इमाम अरे अहमद बात रजा सुनो की मेरी किताबें बात, पढ़ने वाला हनफी कहा बताऊं। तुमने, मुझे बताओ हैं जी? इमाम अबू और हनीफा ने 12 मैं इमामों को क्या कहा है? और मैं पीर नसीरुद्दीन का मुरीद हूँ। अरे बाप, तेरा हाँ जी। पीर नसीरुद्दीन भी बढ़ गया, तू भी बढ़ गया। मैंने जब पूछा उसका जवाब दे। काफिर का है ना? तुम भी रात से। देवबंदी हो, अब मैंने जब देवबंदी पूछा वो मुझे बताओ। देवबंदी हो, मुझे देवबंदी बात वो बताओ, तुम 12 ला इमामों को इलाहा क्या मानते इल्लल्लाह हो? अशरफ रसूलुल्लाह वाले अब हो, सुनो देवबंदी। अशरफ, सुन मेरी गल सुन, चिश्ती मुझे रसूल बताओ का 12 कहते हैं। इमामों को क्या मानते हो? बताओ 12 इमामों को क्या मानते हो? तुम्हारे भी इमाम है? बोल ना, गोलड़े लिया बोल। यूजर साहब अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैं इनकी अंदर की राफसियत निकाल के दिखाऊंगा। ये अंदर से बैठे हुए शिये हैं, या गोलड़े वाले हों या मोड़े वाले हों, जो बंदा अंदर से छुपा हुआ राफसी होगा बाहर निकलेगा। ऑन करो अपना माइक, ऑन करो, बताओ अपने 12 इमाम तुमने किधर से 12 इमाम बनाए? और कह रहे हैं कि बरेलवी हूँ, जबकि खुद अहमद रजा खान साहब ने तो उनको काफिर कहा हुआ है। हाँ। वो काफिर कहते हैं, ये काफिर नहीं मानते। क्योंकि इसके घोड़े लड़े नहीं कार मेरे ख्याल में। हाँ जी, गोलड़े वाले माइक ऑन करो और 12 इमामों के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल अहमद रजा खान बरेली साहब ने बिल्कुल उन्हें काफिर कहा है, और जो ना माने उन्हें भी काफिर कहा है। तो तुम तो काफिर हो गए ना फिर, तुम तो काफिर नहीं कहते उनको। इमाम अहमद रजा, मैं अभी घर में नहीं, मेरे पास उनका पूरा पड़ा है। मुझे कह रहे हो? उन्होंने बिल्कुल नहीं इमाम काफिर रजा ने कहा, तुम्हें काफिर कह दिया, नहीं क्योंकि तुम काफिर इसको कहा काफिर नहीं उन्होंने। कहते वो बड़े लोगों ने ये कहा, लेकिन मैंने अच्छी पूरी तरह उनकी पढ़ ले, तहरीर तेरी पढ़ी मेहरबानी, है। अच्छी तरह पढ़ ठीक ले, है? हाँ गलती कर। देखो, अली हदीस को भी काफिर कहना या देवबंदियों को भी काफिर कहना सुनो गलत ना, है। तुम तो आप काफिर लोगों हो ने गए ना ये है जी, तुम तो काफिर हो किसी गए को ना। किसी को काफिर कहना, यार खुदा का खौफ करो, पता नहीं कहाँ आपने कुरान और हदीस पढ़ी नहीं, है। खुदा इमाम का अहमद खौफ रजा के करो। नजदीक तो तुम काफिर हो ना कि नहीं? इमाम अहमद रजा के नजदीक नहीं, मैं काफिर। और आप देखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी को सब मेरी काफिर बात कहना। ये इस सब बहुत भाई बड़ा सब गुनाह है। सुन मेरी बात आपके सुनो। पास कोई अच्छा, बात अथॉरिटी सुनो, नहीं बात किसी को सुनो, काफिर कहना। सुनो, एक हाँ। आखिरी सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। यार आपका स्टाइल ही नहीं है, आप मुझे पढ़े लिखे ना ना बंदे ना, की सुनो बात बात है। सुनो, बड़ा स्टाइल आपके पास सर एक है बात ही नहीं, नहीं। सर एक सुनो यार, बात सुनो, बीच में बंदा ना बोले यार, हाँ। बीच में बंदा और बोल रहा है, एक बंदा बात करे। अच्छा, तवज्जो के साथ सुनिए। आप शिया के 12 इमामों को मानते हो? नबी की औलाद की जो अहले बैत है, मैं सबको मानता हूँ। 12 इमामों को मानते हो? 11 आ गए, इमाम मेहदी ने आना है। मैं 11 को, जितने नबी की औलाद है, इमाम अहमद रजा तक ठीक हो जिनका गया। है अच्छा, जी। ये बताइए, ये जो 11 इमामों को आप मानते हैं, ये किस चीज के इमाम है? शिया उन्हें इमाम कहते हैं। मैं तो उनको एक, उन्होंने इमामत का दावा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद किया है कि नहीं किया। अच्छा, पता नहीं है, वैसे ही मानते हैं उनको? नहीं मानता, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ उनकी, ये नबी की नहीं नहीं, औलाद है। इज्जत कर ली ना, लेकिन इमाम किस आप बात ना पे
करो ना, आप अच्छा ना वो इमाम करो। है कि नहीं है? इमाम है हैं? कि नहीं? इमाम है कि नहीं?
ہمارے نزدیک تو امامت کا انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ وہ امامت انہوں نے تو پھر وہ کیا ہے 12 کیا ہے یہ 11 کیا آپ نے کہا نا میں 11 کو مانتا ہوں نبی کی اولاد ہے ان کا آخری تک جو ہے انہوں نہیں نے اولاد تو بہت ساری ہوئی ہے نا یہ 11 کیا ہے 11 جو آپ نے کیا 11 کیا ہے 12واں آئے گا آپ نے کہا ہے 11 کیا ہے ان کے نزدیک وہ امامت ان کے پاس ہے 11 امام تک اس کے بعد ہمارے نہیں ان کے نزدیک نہیں اپنا بتاؤ میں آپ سے پوچھا بھائی صاحب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ آپ کنفیوز کیوں ہو گئے ہیں آپ نہیں میں کنفیوز نہیں میں اہل بیت اچھا بتائیں پھر آپ ان 11 کو کیا مانتے ہیں میرے نزدیک وہ نبی کو اولاد اہل بیت ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اہل بیت سے ہیں بس 11 ہی ہیں اور بھی ہیں امام مہدی بھی آنے والے ہیں وہ بھی آئیں گے میں نے پوچھا 11 ہی ہیں یا اور بھی ہیں نبی کی اولاد میرے خیال میں 11 ہی ہیں تو لیکن آپ مجھے لگ رہے ہیں یہ 11 کس نے کہا ہے نبی کی اولاد 11 ہی ہیں صرف نہیں 11 اولاد بہت ہے لیکن آخری وقت تک جو ہے نا جو یہاں پہ تک جو تو یہ 11 کیا ہے ان کی کیا تخصیص ہے خیریت ہے مطلب اور بھی اولاد ہوئی ہے سیدنا حسن کی بڑی اولاد ہوئی سیدنا حسین کی اور بڑی اولاد ہوئی ہے یہ 11 کدھر سے نکالیں ذرا 11 بتاؤ نا 11 کی کیا حیثیت ہے 11 جو ہے نا یہ حضرت امام حسین کی اولاد سے چلے ہیں یہ نہیں سیدنا سنو نا سیدنا حسین کی اور بھی بڑی اولاد ہوئی ہے نا سیدنا حسین کا ایک بیٹا زید بن علی ہوا ہے جس کو زیدیہ مانتے ہیں ٹھیک ہے پھر باقی کی اولاد ہوئی سنے نا جعفر صادق کی اور بڑی اولاد ہوئی ہے اسماعیل کی اولاد ہوئی عبداللہ لفتہ کی اولاد ہوئی ہے ٹھیک ہے نا صرف موسیٰ کاظم تو نہیں ہوا نا اور بھی بڑے ہوئے ہیں تو یہ پوچھو یہ 11 کدھر سے نکالے ہیں یہ بتاؤ شیعوں سے نکالے ہیں یہ آپ شیعوں سے ہی پوچھو بھائی لیکن میں نے صرف آپ کو کہا کہ لعنت نہیں آپ نے کہا میں مانتا ہوں 11 کو مانتا ہوں میری بات سن میں ہر کسی کی عزت کرتا ہوں چاہے کوئی دیوبندی ہو چاہے بات سنو نا میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی عزت کرتے ہو میں نے پوچھا یہ 11 کدھر سے نکالے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے جنت میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کافر سے کہتے اللہ پاک آپ تو مجھے کہہ رہی ہے نا کہ آپ کفر ہو حضرت نہیں میں نے نہیں کہا احمد رضا بریلوی نے کہا ہے اچھا سنو یہ 11 کدھر سے نکالے اس کا جواب دو یار آپ جو ہے نا ایک بات کر رہے ہو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے میں شیعہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اچھا آپ کو بات سمجھ آئیے ویسے اچھا آج تک آپ نے سنا ہوگا گولڑے والے کو آج آپ نے سنے ہمیں ٹھیک ہے نا آپ میری نظر میں ایک جاہل آدمی پڑھے سنے آپ اور آپ گولڑے والے وہ بھی جاہل تھے آپ بھی جاہل ہو ٹھیک ہے میرے گولڑے والے جاہل نہیں ہیں انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ 11 کس چیز کے امام ہے تو پھٹے منہ تیرا یار آپ مجھے یہی نہیں پتا 11 کس چیز کے امام ہے آپ کی جو بات کرنے کے طریقہ آپ عالم میں کہتا ہوں میرا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تم اور تمہارے پیروں جیسے جاہلوں کے ساتھ یہی بات کرنی چاہیے یہی تم لوگوں کو جو کہانیاں سنا کے گئے نا گولڑے والا آپ جتنے مرضی ہو نا آپ وہ چلو مجھے بتاؤ تمہارے گولڑے والے نے کبھی تمہیں بتایا یہ 11 کس چیز کے امام ہے آپ جو ہے نا میرے حساب میں سنے بھائی میرے پیارے بھائی آدمی ہو بہت ہی پیارے راج دلارے مجھے سنو صرف اتنا بتا دو یہ 11 کس چیز کے امام ہے چلے یار چھوڑو یار تیرے بندے سے بحث کر نہیں بتا 11 کس چیز کے امام ہے وہ چھوڑ یار اپنا کام نہیں یار 12واں بھی آئے گا پر 11 کس چیز کے امام ہے جو بندی ہے یار 10 نا یار اشرف علی تھانوی کا اور لنوتی کا نصیر دا واسطہ تو ان کا کلمہ پڑھ میں کہہ رہا نصیر دے پیو دا واسطہ ان کا کلمہ پڑھ میں کہہ رہا ہوں گولڑے دا واسطہ گولڑے وہ جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کا کلمہ پڑھ میں کہا یزید سن نا یزید بہتر ہے امام جعفر سے امام جعفر نے کیا کہا تو بس امام جعفر کہتا ہے قرآن اصل نہیں ہے میں اب جاتی دفعہ تم پہ اور تیرے پورے خاندان پہ یار تیری ماں پہ لانا تیری دادی پہ لانا تیری نانی پہ لانا تیرے گھوڑے پہ لانا جیسی گود پہ تو بیٹھا اس پہ لانا سب پہ لانا تو لعنت کر لعنت جواب تو نہیں ہوتا نا یعنی کیسے کوئی بےغیرت لوگ ہیں حنفی بن کے بیٹھے ہیں ایک نمبر کے رافضی کمینے ہیں سارے کے سارے اور یہ ہے وہ لوگ اہل سنت میں بیٹھ کے خود بھی گمراہ سب کو گمراہ کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جن 11 کر رہا ہے پتہ لگے 11 کو سمجھ نہیں آتی 11 کو کہے کیا یہ امام کہے کیا کہے اس کو وہ جی ہم گولڑے والوں کو مانتے ہیں وہ بھی سارے بےغیرت تھے جنہوں نے تجھے یہ پٹیاں پڑھائی ہیں تو بھی بےغیرت ہے بالکل ایسے میرے دوست ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے وہ تو وہ نہیں کہتے لانتی اگر نصیر الدین کوئی جاہل نہ ہوتا نا تو تجھے کو ٹھیک پٹی پڑھا کے جاتا اگر اس نے تمہیں یہ پٹیاں پڑھائی ہیں تو 11 امام ہمارے بھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں میں عزت کرتا ہوں 11 ہی ہیں وہ باقی اولاد نہیں ہے نہیں بس یہ 11 جو ہے نا 11 ہیں یار بات سنیں مویا دا سر 11 تھوڑا جہالت تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو کر محبت سے گفتگو کرتے ہیں کون بات کر رہا ہے بھائی آپ کون ہیں احمد علی بات کر رہا ہوں آپ کا بھائی احمد علی بات سنو ناراض بھی نہ ہونا اس بات سے نہیں احمد علی محبت سے بات سنو پیار سے میں آپ کی پہلے بھی آپ کی بروڈ سے اسی لیے کیا تھا میری بات سنو بھاشن مجھے بعد میں دینا اس طرح کا کوئی خنزیر آئے گا جو سنی بن کے شیعوں والی باتیں کرے گا نہیں چھوڑیں گے اس کو سمجھ گئے میری بات کو اپنا مائک آن کرو پہلے اس کو پیار سے لانے کی کوشش کریں بات سنو نا میرے سے پہلے پیار سے بات کی تھی مولانا نے وہ مکر کرتا ہے منافقت کرتا ہے شیعوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ اس کو ان کے امام جعفر کی روایتیں سنا رہے ہیں وہ نہیں نا وہ مطلب یہ وہ نہیں مانتے نا فٹے منہ تیرا لانتی تو پکڑنا ان کو بے غیرتوں کو کہ تمہاری تو سارا مذہب ہی اصول کافی ہے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہمارے سامنے تو پیار محبت سے بات کی ہے پھر آخر میں نے ڈنڈا دیا آگے یا تو کھل کے کہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو چلے پھر بھی آپ سے طریقے سے بات ہو لیکن منافقت نہیں کرنی چاہیے نا بالکل بالکل جائز نہیں ہے تو پھر سنیوں والا عقیدہ رکھیں اور اپنے آپ وہ پٹھان کہاں سے بھاگ گیا پٹھان کہہ رہا تو میں بھاگوں گا نہیں
अच्छा अहमद अली, अपना बताओ, अपना तारुफ कराओ भाई। मोहम्मद अहमद अली, बस मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मुसलमान है जी। कौन से सुनिए मुसलमान है? असूल काफी वाले मुसलमान है? सुनियों वाले, कौन से वाले? 12 इमामों को मानने वाले? आजकल तो मुसलमान भी ऐसे ऐसे हैं सुनियों वाले, हाँ, सुनियों सुन्नी वाले, वाले मुसलमान। तो 12 इमामों के बारे में बारह क्या इमामी कहोगे? मुसलमान। 12 इमामी सुनी। सुनियों वाले। 12 इमामी सुनी। ये अच्छा उस अच्छा यजीद की अच्छा। बात अहले करते सुन्नत, हैं। सुन लो, अहले सुन्नत जी के नजदीक जो शिया के इमाम है ना, शिया के इमाम जिन अकायद को शिया बयान करते हैं वो सारे काफिर हैं। वो कुरान के मुनकिर हैं, तकैयाबाज हैं, दीन को छुपाने वाले हैं, सारे काफिर हैं। अपने आप को दावा करते हैं हम पे वही आती है, अपने आप पे दावा आप करते क्या हैं कहें? जमीन पे अल्लाह की अस्सलाम हुज्जत है, वालेकुम वो तो सारे भाईजान, काफिर हैं। बात समझ आइए, मेरी नहीं आई है। आप कौन है? आप कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात। सर आप इतनी देर से 12 इमाम की बात कर रहे हैं, आप अपने गुफ्तगू में कह दे कि मेरा क्या ज़हन है? किसका जहन? मेरा जहन? आपका ज़हन? हाँ जी। मैंने बताया ना आपको, मेरे नज़दीक, मेरा जहन के नज़दीक, मेरी तहकीक के नज़दीक शिया के 12 इमाम मुसलमान नहीं, दीन इस्लाम से खारिज हैं, कुफरी अकायद के हामिल थे, तकियाबाज थे। तो ठीक, उसमें तो बड़े प्यारे प्यारे नाम भी हैं और बहुत ऊंचे मर्तबे वाले भी हैं। देखे ना, बात सुनो ना, शिया उनका नाम टॉम, हिक, डेक, जेक, जेरी, जो मर्जी रखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शिया के इमाम है, जो उन्होंने एक्सप्लेन किए, जो उन्होंने बयान किए, जो उनकी हदीसों में है, वो तो सारे काफिर हैं। हाँ, जो हमारे पास हैं वो तो नहीं है ज़ाहिर। मैं मिसाल देता हूँ आपको, नाम ले देता हूँ। जो शिया के इमाम जाफर आपके 12 इमाम सुन लो ना, अलग हैं, उनके 12 इमाम अलग हैं। मैं तारुफ करा, मैं सुनो ना, मैं शिया के इमाम जाफर का तारुफ करा देता हूँ, ठीक है? शिया के इमाम जाफर और हमारे इमाम जाफर में फर्क देख लो, ठीक है? शिया का इमाम जाफर तकियाबाज है। नाराज ना हो, अरे मेरी सब्र बात कर सुनो, रहा नाराज हूँ, ना हो ना, शिया के इमाम मेरी जाफर बयान होगी करता ये हूँ ना। चार्जिंग खत्म, कभी आप कहीं भाग अरे गया, बच्चे सब्र ठीक कर है? लो थोड़ा सा, मैं बयान करता हूँ। अभी शिया के इमाम जाफर का अरे तारुफ मेरी कराने होगी वाला चार्जिंग खत्म, कोई अच्छा नहीं ना, होगी तो खत्म हो चले जाएगी, जाना मैं ना। कहता हूँ सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे, सब्र कर लो। मैं सेंड करूंगा आपको तस्वीर, आप नंबर अरे देना, मैं रोड तुम क्या कर सेंड रहा करोगे यार? तुम फिर आ जाना, कोई मसला नहीं, हम तो रोजाना बैठे स्क्रीन शॉट पड़ा है यार, यार। अभी स्क्रीन आपको शॉट रोड पर से भाग तू गया सारे में ये दिखा दी, वो। पहले इमाम जाफर तो सुन मेरे को ना। नहीं नहीं, बंद हो गई तो बंद होगी ना, कोई बात नहीं है। हम कौन सा कोई नहीं, फिर खोल जाएगी, कोई मसला नहीं, हम खोल वारंट देंगे। भेज दें। हाँ, हम खोल देंगे। अच्छा जी, ठीक है बैठा हूँ, शिया तो के इमाम 2% जाफर, पड़ेगी। शिया के इमाम जाफर, शिया के इमाम जाफर एक बुज़दिल, एक कमजोर, एक तकियाबाज, एक मकरबाज, एक फ्रॉडी इंसान थे। ये शिया के इमाम जाफर, हमारे नहीं, शिया के इमाम जाफर। वो दीन को छुपाते थे, वो हदीसों में झूठ बोलते थे, वो हलाल को हराम, हराम को हलाल करके बयान करते थे। वो मुत्ते के रस्सिया थे, मुत्ते के फजाइल बयान करते थे, मुत्ते को जन्नत का टिकट कहते थे। वो साहब रसूल पे लानत करते थे। वो अपने आप को नबियों से अफजल जानता था। वो अपने आप को खुदा का जमीन पे हुज्जत, नूर, साहिब वही इलाही और तमाम नबियों से ज्यादा इल्म रखने वाला कहता था। काफिर था। लेकिन अहले सुन्नत के यहां इमाम जाफर कोई ऐसा गंदा कीदा नहीं रखता था। मुसलमान है, मोमिन है, हमारी सर आंखों पे। पर जो शिया के यहां पाया जाता है, कोई मकरू शख्सियत है जो सहाबा पे तबरा करने वाला है, और उसके कहे के ऊपर आज भी शिया तबरा करता है साहब रसूल के ऊपर। और पूछो अगर शिया से क्यों तबरा करते हो, इमाम जाफर ने फरमाया, फिटे मुंह तेरे इमाम थे। अगर कोई सी ने फरमाया है, हाँ, हमारे इमाम जाफर ने नहीं फरमाया। हमारे यहाँ इमाम तकियाबाज नहीं है, हमारा इमाम जाफर मुते का रसिया नहीं है, मुते के फजाइल नहीं सुनाने वाला, और दीन को छुपाने वाला भी नहीं है, हदीस में झूठ बोलने वाला भी नहीं है। सिका सब्त है, हमने हदीसें ली हैं उससे, बकवासें नहीं ली। हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर हों और उनके इमाम बाकिर हों, उन्होंने अल्लाह के रसूल की हदीसें बयान की हैं, बकवासें नहीं बयान की। शियों के अच्छा, यहाँ नाराज ना हो ना, ये आपने नाम नहीं बताए। किसका नाम? 12 इमाम है, आपने कहा नाम में हमारे नाम अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। बताया ना इमाम जाफर, सुना आवाज नहीं आई है? वो तो एक इमाम के बारे में बता रहे ना, 12 इमाम के बारे में नहीं बता रहे ना। सुनो ना, तो एक इमाम काफी नहीं? मजा नहीं आया? थोड़े और मजे चाहिए आपको? चस नहीं आई है, चस नहीं आई है, कोई नहीं, इतने मजे काफी नहीं ना। सारी चस एक दिन ले ली तो फिर ऐसे अगले दिन के करेंगे। अंदाजा करो, इमाम जाफर अगर चस नहीं आई तो फिर तो किसी चीज से चस नहीं आनी। फिर चस आनी कोई नहीं। साजी बस एक ही अर्ज है, बड़े प्यार से मोहब्बत से अगले बंदे को ना अपनी तरफ लेके आना। क्या पता अल्लाह पाक हिदायत दे दे। हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है और कोई भी नहीं। तेरे कहने से, उसके कहने से असल नहीं में आएगा। अहमद साहब मसला ये है कि हम यहाँ पे वो नहीं, जब मरीज को वो शॉक लगाते हैं ना, तो अब आप डॉक्टर को बोलें कि जरा प्यार से आराम से लगाएं, बेचारा उछल ना जाए। ये तो करनी होती है, कभी कभी सर्जरी करनी होती है। वो तो सांस देखिए ना, बचाने के लिए मौलाना साहब, लगाया जाता है। मौलाना साहब उसको बड़े प्यार से, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि उसको वबरकातुहू। ये हो मेडिसिन दे गया, रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा उसको थपकियां दे रहे हैं, बेटा खा लो शिफा होगी। अब वो बंदे को तकलीफ जो है ना, वो उसकी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही और मेडिसिन का इनकार भी कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप अगर मेडिसिन मुंह से लेते नहीं हो तो फिर हमें टीका लगाना है। वो कुछ नहीं किया, फिर उसको टीका लगाया। अच्छा, ये बहुत नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, एक मुर्शिद साहब हैं और भी मून और पता नहीं कौन कौन। ये आप ऊपर आ जाओ यार, ऊपर आके बात करो। को उठाएं जरा। जी फैंसी, आप बात करें।
कहता है अहले बैत के दुश्मन। बच्चे तुम्हारे जो अहले बैत है अल्लाह की पनाह है, तुम्हारे अहले बैत पे तो अल्लाह की पनाह है, वो अहले बैत नहीं है। जी अहले बैत वालेकुम वही है जो हमारे पास है। क्या हाल है भाई जान, सब ठीक है? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह सुनाएं। अच्छा काम। जी अल्लाह का बड़ा करम है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं भाई आप। हम क्या कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप शिया हैं सुन्नी हैं? मैं सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो वो काम किया ना, आज मैं वीडियो देख रहा था डॉक्टर साहब के, वो मरियम नवाज जा रही है ना, और जाते वक्त सबको ऐसे इशारे कर करके लड़कियों के लिए गुड वर्क गुड वर्क, पीछे मुड़ के फिर पीछे मुड़ के देख रही है, कह रही है आप कर क्या रही हो? गुड वर्क। पहले वो कैमरे को देख रही थी, उनको देख ही नहीं रहे, बस कैमरे को उन्होंने टिकटॉक बनानी होती है ना, गुड वर्क करती हुई जा रही है, पीछे मुड़ के फिर कहती है आप कर क्या रहे हो? वो बात है कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम, मैंने कहा उसका आप कर ना क्या सारा रहे काम टिकटॉक पे ही चलता है, बस वो टिकटॉक बना के निकलती है, दिन को टिकटॉक बना के अंदर चली जाती है। नहीं नहीं माशाल्लाह सही कर दियो बे भाई, सही पकड़ दियो तुसी। और खुश रहें जट साहब, कुछ सवाल पूछना हो तो अल्लाह बताएं। पाक कहीं हमें अल्लाह हाथ पाक सख्त जिंदगी रखना दे पड़ता है, भाई। कहीं पे नरम चलता है, बस काम क्या करें। नहीं अल्लाह पाक आपको नवाज जिंदगी दे मेरे तुम्हारे भाई। माँ के मुंह पे टट्टी करो। बच्चे तू जो मर्जी कर यार, तेरी नरगिस के मुंह पे ना करूं मैं जाके? हाँ, तेरी नरगिस के ऊपर जाके करता हूँ। माँ तेरी मुद्दे कराती फिरती है पूरे मोहल्ले में तू इधर आके घुस रहा है। अम्मा तेरी ने भैन जो शलवार नहीं होते मुंडे ते रख के ते सारे मिलदी फिरदी है, ते तू आके गाना पा करना ते कंजर दे यार लगी है। सही कह रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुद्दे कराने वाली माओं के बच्चे जो है ना, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है हनान, ठीक हो जी? जी जनाब अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक। हनान शिया हो? मुसलमान? नहीं जनाब मुसलमान हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। 12 इमामी। आजकल तो जी 12 जी इमामी की बात आ जाती है। 12 इमामियन भी हैं? मैं हनफिया असना आशरिया है जी। हाँ जी 12। आप हनान साहब, आपके पीछे शोर बहुत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट लगा देते हैं हम। हाँ अब कुछ आवाज़ ठीक हो गई है। आप 12 इमामी सुन्नी है या वालेकुम सलाम बगैर साहब। 12? जी हाँ ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमामी सुन्नी हैं हम। अच्छा 12 इमाम मानते हैं आप? तो जी मुफ्ती साहब संभालो जी। ये आपका मरीज है डॉक्टर साहब। ना संभालो जी, पिछले को मैं जॉनसन आ चुका हूँ। आप मेडिसिन देना शुरू करें, मैं फिर आऊंगा, मैं टीके लेने के लिए। टीका पार के ले आओ ना वास्ते। मैं तैयार करना। जी हनान साहब। जी फरमाइए। आप 12 इमाम मानते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। क्या मानते हैं 12 इमामों को? 12 इमाम अहले बैत के हमारे 12 इमाम हैं। अच्छा वो इमाम किस चीज़ के इमाम है आपके इमाम? जो ये 12 इमाम जिनको कह रहे हैं, ये किस चीज़ के इमाम है? यार हनान और तू म्यूट हो जाएगा, 2-2 मिनट में तेरा इंतजार करेंगे। मौलाना जनाब मैं हाजिर हूँ, थोड़ा सा काम था। वैसे हमारे ये मुसलमानों के इमाम है, ठीक किस चीज़ के? है। हम अहले बैत को भी मानते हैं। किस चीज़ के इमाम है ये? आप नबी को मेरी बात सुन। जी हमारे नबी की औलाद है ना, वो हमारे इमाम है। सिर्फ 12 अली के बेटे हमारे इमाम। अच्छा अली के ये अली के बेटे हैं, अली के। अली के 12 बेटे हैं, इसके अलावा कोई बेटे नहीं है? अली के बेटे सिर्फ ये 12 हैं, इसके अलावा कोई नहीं है? यार अब मेरी बात सुने, आप शिया तो नहीं? कौन? आप लोग शिया तो नहीं? जी हम शिया हैं। शिया ते भाई फिर मैनू कट दियो विच। क्यों? अहले बैत दा मुनकर है, अहले बैत नाल बुग़्ज़ है तेनू? भाई बुग़्ज़ सानू किसे नाल नहीं हैगा, जेड़ा काफिर है ओ काफिर है। आप लोग अहले बैत के मुनकर हो, सुन्नी अहले बैत के मुनकर हैं। नो मेरी बात सुनो, हम अहले बैत के मुनकर नहीं है, ठीक है। तुम लोग हो ही काफिर जब हो शिया, लेकिन हम अपनी बातें मुझे निकाल दो यार, मैं जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कौन सा कुरान है? भाई हमारे पास वो कुरान है जो हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। तुम्हारे कुरान में 30 पारे, हमारे पास 40 वाला कुरान है, तुम्हारा कुरान पूरा नहीं है।
ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ और भरा तू मुसलमान नहीं है ना, तेरे को 30 सुपारे वाला कुरान है, साढ़े को 17,000 आयतां वाला कुरान है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਸ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ तेरे को कुरान पूरा नहीं है ना। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ लेकिन तेरे को ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ पूरा कुरान नहीं है ਯਾਰ इधर जवाब दे। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ओए हनान ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ अहले बैत दे साडे इमाम ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ अच्छा सुन हुण अहले बैत दे साडे इमाम जाफर सादिक कहने कि असली कुरान 17,000 आयतां वाला है, तेरे कहां कितनी आयतां वाला कुरान है? भाई एक मेरी गल सुन ले मैं तेरे को की पूछ मेरी गल सुन मैं तेरे को की तू पूछ रहा यार बैत को मनना है? तू शिया तू शिया तू तस्वीर लाई है काफ प्लम्बर दी ठीक है चुप करके ना ते आ चला मैं तू खुद ही भैन दी च गल करो प्लम्बर दी कैट सही गल ना करो बाजी अनंत भाई को कवर पाओ जरो ये होता है सुन्नी डॉक्टर साहब, ये इसे सुन्नी कहते हैं। 12 इमाम भी सुन्नी था लेकिन शुक्र करें उसके पास क्लाशनकोव नहीं थी उसने बस मारना था पूरा। नहीं डॉक्टर साहब एक बात साबित होगी कि 12 इमामी सुन्नी के अंदर जो 12 इमामी सुन्नी है उनके अंदर भी गैरत होती है। गैरत होती है। मैं थोड़ा ना समझी है, बिल्कुल सही किया थोड़ी बहुत ना समझी। ये असल में उनका होता है हाँ, उनके छोटे मोटे मौलवियों को कसूर होता है, वो हमारे भी इमाम है और ये ज़्यादातर बिल्डिंगों में पाई जाती है चीज़। वो हमारे इलाके में एक बंदा था ना, वो भी शुरू में सपा के साथ लगा था ना, तो वो कहता है जी आप कहते हैं ना वालिद को, तो वालिद को उसने आगे भी काफर काफर जिया काफर, उसको कहता है तू काफर है, तू नहीं मान रहा। तो ये हाल है भाई इन लोगों का। अल्लाह अकबर।